We often heard the fact that heavy industrialization is not possible in Himachal Pradesh due to geographical limitations, but it also creates a great scope and opportunity for the development of small scale industry, because the rural people directly associated and benefited by this sector. The economy of Himachal Pradesh is agrarian one, and most of the people are living a sustainable life. So the MSME sector is not only providing livelihood to the rural people, but it also help to preserve their culture. So there is no exaggeration to say this, that the small scale industry is the backbone of the rural life of Himachal Pradesh. So hello students, welcome to Raj Malhotra IAS and Target HPS 2026 series, in which today we are going to discuss another important topic of HP Journal Studies. And today's topic associated with the economy of Himachal Pradesh and the most prominent sector which benefit to the rural people. So today we are going to discuss about the small scale industry, its status, growth, government's initiatives, and so many other important facts which are important for your prelims and mains exams. So let's start. So we can start understanding actually which are the prominent sectors associated with this cottage industry. So these are some of the traditional sectors which we can consider the part of the rural economy of the state. First, the handicraft and handloom sector. Most of the economy of the state is associated with it. Products like Kulluvi shawl, Kinnori shawl, Chamba ka rumal, these are one of the fine examples with respect to it. And the major districts associated are Kullu, Mandi, Kangra, Kinnaur and Chamba. Another beautiful example is sericulture, which is growing nowadays a lot. Silk cocoons and raw silk associated as a raw material, and the key districts are Bilaspur, Kangra, Mandi, Hamirpur and Una. Another important one is the agro processing, especially the fruits and vegetable. Here we can include the pickles, jams, jellies, juices, canned mushroom, etc. And the prominent districts associated with this product are Solan, Sirmaur, Kangra and Shimla. There are so many forest-based products are also the part of it. For example, bamboo furniture, handicraft, Ayurvedic medicines, etc. And the major districts associated are Kangra for bamboo, Mandi, Sirmaur for herbs. And the last in a row is the metal and stone work. Especially the traditional metal ware and stone carving is very famous. Mostly it is popular in all districts of Himachal Pradesh, but when it comes to the metal craft, we remember only one district, and that is the metal work, brass metal work of Chamba district. So these are some of the fine examples with respect to the prominent cottage industry products. Now, is there any development so far? So yes, the new industrial policy is introduced and government has targeted or made some goals with respect to the development of MSME sector. So the first is, these all traditional products must be modernized through technology and adoption of skill development. Other than this, government is also trying to boost the green manufacturing in states. There are so many green manufacturing products, potential of these products in Himachal Pradesh, whether it associated with the handicraft, whether associated with the packaging or recycling of the products, etc. Talk about the integration of market, integration or try to build a supply chain, so that these all products reach to the global market. And here we need to use the digital platform and try to create the export chains. Alright, so these are areas where the government is targeting under the new industrial policy. Talk about the green manufacturing and its potential in Himachal Pradesh. Separate question can be asked from this part. So we can add some of the important green manufacturing areas like agro processing. Government is trying to use the solar energy in small scale units, through small scale units, to
develop or grow the dry fruits and vegetables, so that also reduce the fossil fuels. Second in a row is the handicraft and wooden textile. There are so many eco-friendly natural dyes which are used in this regard, and it is also a resource of sustainable development. Talk about the packaging industry. So the most important is the recycling products, especially raw materials or the plastic products. Also try to boost the paper packaging. All right. So these are the channels which government is working on, and also the part from the rural economy. And next is the herbal and pharmaceutical unit. As we know that there is Himachal is a part of the Himalayan belt and have a lot of potential of herbs and shrubs. So government is also trying to use these herbal products through Ayurvedic industry. So many such plants were installed by the government. Talk about the other organic wooden craft furniture. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है सरकार की तरफ से with respect to this करी जा रही हैं. Talk about the next one. So now we will discuss about the investment, what investment so far has been done by the government of Himachal. तो सबसे पहले बात करेंगे, around 5,000 crore is investing or approved by the state government so far, and around 683 new projects जो हैं वर्थ रुपीज 14,000 करोड़ ये भी अप्रूव करे गए हैं सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से. एंड अराउंड इन सारी चीजों की वजह से अराउंड 32,000 जॉब्स सपोज टू बी क्रिएटेड. ऑलराइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एमएसएमई ग्रोथ, सो तकरीबन 2.7 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं उद्यम पोर्टल पे, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क है स्टेट में. ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं बात करूं रूरल एमएसएमई सपोर्ट की, सो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है 1642 करोड़ का एक प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है. अभी फेस्ट हुआ था, द फेस्ट वाज ऑर्गेनाइज, एमएसएमई फेस्ट वाज ऑर्गेनाइज इन जैन 2026. उसमें ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष रखा गया. अप्रूव जो मिला है 109.34 करोड़, जो कि बहुत लिमिटेड है. इसके अलावा मेनी स्टार्टअप्स वर आल्सो इनिशिएटेड बिटवीन द पीरियड ऑफ 2023-25, लॉन्च्ड अराउंड 107 स्टार्टअप्स एंड एस्टैब्लिश्ड सो फार. जो क्वीन हैं आपके स्टार्टअप्स अराउंड 407. ठीक है, 407 ऐसे नए इनिशिएटिव हैं जो जल्दी में देखने को मिलेंगे. चलिए, टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. So now we can discuss about the contribution of the cottage industry in Himachal Pradesh. ठीक है, क्या क्या contribution है? तो सबसे पहला तो contribution है in case of the employment generation. We have the fine example of the weavers. आज स्टेट में 45,000 के आसपास जो weavers हैं वो रोजगार पाए हैं. हैंडलूम वीवर जो है वो रोजगार पाए हैं, एंड मेनली women are associated with it. तो रूरल जो women है उसको डायरेक्टली यहाँ से फायदा मिल रहा है. ठीक है, we can also take the example of sericulture here. Around 10,010 जो आपकी families हैं associated with the sericulture in Himachal Pradesh, mainly in the Bilaspur district. और फैमिलीज की बात करें तो तकरीबन 1728 जो विलेजेस हैं, सॉरी, वो इसके से फायदा ले रहे हैं डायरेक्टली. डिस्ट्रिक्ट्स जो हब बने हुए हैं एमएसएमई सेक्टर के, उसमें कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, किन्नौर, चंबा एंड लाहौल स्पीति आर इंक्लूडेड. एंड government is also trying to identify such villages which are traditionally known for their handicraft and handloom art or craft or any other art or craft. All right, for example, Sharan village or Kanihama village. Government is also introducing many skill capacity building projects. For example, we can take the example of Kullu. 11 जो हैं आपके सेंटर्स, वीविंग सेंटर्स जो हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने स्टार्ट करे हैं, सो दैट एक वीविंग जो इंडस्ट्री है यहाँ की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो और अधिक बूस्ट हो. ठीक है, कुल्लूवी शॉल इज आल्सो द पार्ट ऑफ जीआई टैग, सो डेफिनेटली होना भी चाहिए. सो इसके अलावा अभी रिसेंटली हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 ऑर्गेनाइज करा गया, और इसमें तकरीबन 3,000 जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे वो रखे गए. स्पेशली जो शॉल्स हैं, इंक्लूडिंग दी शॉल्स ऑफ किन्नौर, कुल्लू, चंबा, और ये सारे इसमें से ज़्यादातर जीआई टैग प्रोडक्ट्स ही थे. ऑलराइट, सो इट आल्सो हेल्प टू एक ग्लोबल विजिबिलिटी मिलती है, बिकॉज मेनी टूरिस्ट केम हियर.
when they came they will see, so somewhere एक जो है सप्लाई चेन की हमने बात करी थी वो जरूर बूस्ट होती है. Other than this, it also bridging the urban rural divide. There is a gap. ठीक है, रूरल और अर्बन लाइफ के बीच एक बहुत बड़ा गैप है. Many people are shifting towards urban life, but the MSME sector in the state, because ये livelihood provide कर रहा है गांव में ही लोगों को, तो इस गैप को भी कहीं ना कहीं ये फिल करने का काम करता है. ठीक है, because many people are shifting towards urban life because they are better career opportunities, other amenities better हैं. लेकिन अगर आपको रोजगार आपके घर में ही मिल रहा हो, सो आई डोंट थिंक सो पीपल विल एवर लीव द हिमाचल प्रदेश और शिफ्टेड टू अदर रीजन्स. ऑलराइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ये इकोनॉमिक इंपैक्ट हम देख सकते हैं. जैसे कि हैंडलूम वर्कर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, 13,688, दे आर 13,688 handloom workers in the state, and most of associated with the marginalized communities, those don't have that much access to the mainstream life or getting benefit from the mainstream life. और इसमें बहुत सी women या महिलाएं भी शामिल हैं. Alright, talk about the key districts and products की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर प्रोडक्ट्स की हम बात करेंगे तो कुल्लूवी शॉल जो है, किन्नौरी शॉल जो है, ठीक है, या फिर बहुत से हमारे जो इटेबल्स हैं जिसमें हम कांगड़ा की चाय कह सकते हैं, यूरोपियन यूनियन द्वारा सर्टिफाई करी गई है. सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप. ठीक है, इसके अलावा सी बकथॉर्न, हिमालयन सी बकथॉर्न की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है मार्केट में. सो स्पीति वैली में जो है, लाहौल स्पीति वैली में बहुत ज़्यादा ग्रो होता है नेचुरली, तो ये एक मार्केट जो है या करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है. ऑलराइट, हिमफेस्ट का मैंने एग्जांपल आपको पहले ही दे दिया. डिजिटल इंटीग्रेशन एंड फॉर्मलाइजेशन के इंडेक्स में हम बात कर सकते हैं. तो जो इंडियन हैंडमेड पोर्टल है उसमें तकरीबन 18,135 प्रोडक्ट्स जो हैं डिफरेंट विच एसोसिएटेड विद द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री, ये रजिस्टर्ड हुए हैं. सो इट्स अ ह्यूज नंबर. ऑलराइट, इसके अलावा पहचान आईडी भी दी जा रही है आर्टिशंस को, वर्कर्स को, सो दैट एक सोर्स ऑफ जो इनकम जनरेट होगा उसका डायरेक्ट फायदा उन तक पहुंच पाए. All right. Next, we can talk about the government initiatives part. Export potential. एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत कम है, हालांकि बढ़ाने की ज़रूरत है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सपोर्ट यहाँ से होता है हिमाचल प्रदेश से करंटली, इट इज़ फार्मा इंडस्ट्री या फार्मा प्रोडक्ट्स. आफ्टर दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सो द प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद द एमएसएमई सेक्टर, कॉटन यार्न 7% जो है ये एक्सपोर्ट होता है, और जो कॉटन फैब्रिक हमारे यहाँ पे बनता है या फिर वुलन फैब्रिक बनता है, इसकी भी बहुत हाई डिमांड मार्केट में है. ठीक है, लेकिन सप्लाई चेन बहुत बेहतर नहीं है. स्पेशली जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा जो है हाईली डिमांड है मार्केट में. बट द प्रॉब्लम इज कि एक्सेसिबिलिटी है वो चैनल्स उतने ज़्यादा नहीं है. सो इसके अलावा हम बात करेंगे रिसोर्स यूटिलाइजेशन. गवर्नमेंट लगातार ये कोशिश कर रही है कि इन प्रोडक्ट्स में लोकल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल किया जा सके, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, चाहे वो हमारे यहाँ के डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों, चाहे चंबा के शहद की बात करें, चाहे आप लाहौल स्पीति के काला जीरा की बात करें, चाहे वो कांगड़ा की चाय हो, ठीक है, या फिर जो स्पीति का चरमा है उसकी बात करें, या एप्रिकोट ऑयल ऑफ किन्नौर की हम बात करें. देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, हेजलनट ऑफ पांगी रीजन, ये सभी जो है इनका इस्तेमाल करने की कोशिश है. ऐसे ही फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और मिनरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी सरकार करना चाहती है, और काफ़ी हद तक जो है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये हेल्पफुल साबित हो रहे हैं. और इट आल्सो हेल्प टू ना प्रिजर्व द कल्चर, बिकॉज व्हेन द लोकल पीपल आर गेटिंग बेनिफिट डायरेक्टली, जब उनको रूरल इकोनॉमी बन रही है, एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन रहा है उनका, सो इट आल्सो हेल्प टू प्रिजर्व देयर कल्चर. उन पर ये प्रेशर नहीं है दैट दे हैव टू स्विच द प्रोफेशंस. ऑलराइट, इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर में हमने ये बात कर ही ली, ठीक है. और बहुत से जीआई टैग्स जो हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है मार्केट में, उसी में अब युवा जो है वो अपना करियर भी बना रहा है. टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन नाउ these are the positive, we can say that, and the government initiatives also, but at the same time there are some challenges associated with it. The very first one is the finance, the lack of capital. So this is one of the major problem which the MSME sector in the state is facing problem, because बहुत कम जो loans हैं वो मिलते हैं, आसानी से loans नहीं मिलते, या other funding जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री को हो नहीं पाती है. और वीवर जो है या हमारे अदर आर्टिशंस हैं,
ठीक है, वो धीरे धीरे अपनी कला को छोड़ के किसी और प्रोफेशन में स्विच कर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहिए सरकार की तरफ से, हालांकि किया गया, बट स्टिल वी कैन से दैट अ वेरी लिमिटेड रीच। Talk about the infrastructure deficiencies. So in being a hilly state, there are some geographical challenges with respect to it, क्योंकि transportation is the lifeline of the economy of the state. अच्छे रोड होना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, अच्छे वेयर हाउसेज होना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का होना, उनका प्रॉपर मैकेनिज्म, ठीक है, या सप्लाई चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर हम क्या देखते हैं, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है, बहुत से जो हमारे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, ईटेबल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। आप एप्पल का एग्जांपल ले सकते हो, कीवी का एग्जांपल ले सकते हो। अभी आप रिसेंट एग्जांपल ईरान के कंटेक्स्ट में हमने देखा, ठीक है, कि भाई एप्पल के तकरीबन जो एप्पल और कीवी के 700 कंटेनर थे जो यहाँ से इस रीजन से गए थे, ठीक है, मतलब इंडिया से गए थे, पर मेजरली वो आपके हिमाचल से, हिमाचल का जो एप्पल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, दे आर गेटिंग स्टक देयर। चलो ये तो अभी वॉर लाइक सिचुएशन है, बट इन जनरल भी लैंडस्लाइड होती है, ठीक है, रोड जो है खराब होने की वजह से अक्सर जो है स्टक डाउन हो जाता है और प्रॉब्लम्स आती हैं। सो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर कम्युनिकेशन की कमी हमें देखने को मिलती है। अदर देन दिस मार्केट कॉन्स्टेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। There are so many small scale industry products which have a huge potential to grow here and also highly demanded, especially because of the social media. अक्सर हम social media पे बहुत से products को देखते हैं, but the problem is these people, those are actually growing it, don't have knowledge, या उनके पास वो accessibility नहीं है, channels नहीं है कि इस जो international market है या national market है उसके साथ वो directly tie up हो पाएं। So limited local audience होने की वजह से ना वो एक market नहीं मिल पा रही है इन सभी products को, तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Many of the people associated with the MSME sector are not that much techno friendly, सो दे नीड टू बी टॉक, एक प्रॉपर उनको जो है एक शिक्षा दी जाए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम जी रहे हैं और अभी भी लोगों को बहुत से जो सोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी के उनकी जानकारी नहीं है। रॉ मटेरियल शॉर्टेज अक्सर हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में, बट वी हैव सीन दैट रॉ मटेरियल तो है लेकिन उसको प्रॉपरली जो है एक्सटर्ट करने का वो मशीनरी हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, वो वेयर हाउसेज नहीं है उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का ही एग्जांपल दूं, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है फूड्स होते हैं हिमाचल प्रदेश में, क्या उस हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में क्या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इंस्टॉल करी गई हैं, क्या फर्दर उनका सप्लाई चेन मैकेनिज्म बहुत बेहतर है? सो द आंसर इज नो। ऑलराइट, सो दीज आर अ काइंड ऑफ चैलेंजेस जो अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नाउ एट द एंड वी कैन डिस्कस अबाउट द वे फॉरवर्ड, क्या किया जा सकता है। सो वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम द इनहैंस एक्सेस टू द फाइनेंस। जैसे कि सरकार कोशिश भी कर रही है ना, माइक्रो क्रेडिट ऑप्शंस देने चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज द फाइनेस्ट एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू इट। हालांकि रीच अभी भी लिमिटेड है, इसको और कैसे जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है ये देखना है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये बहुत ज़रूरी है। सोलर पावर, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने चाहिए, ठीक है। अदर जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। जो बेसिक मशीनरी है इनके लिए कम से कम वो इंस्टॉल हो। वेयर हाउसेज होने चाहिए, ठीक है। वेयर हाउसेज की जब मैं बात कर रहा हूँ भाई, उसमें जैसे जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए फ्रिज इंस्टॉलेशन होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि प्रिजर्वेटिव्स हों, ताकि ये सारी चीज़ें खराब ना हो जल्दी, ये कमी है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन प्रॉपर्ली होना चाहिए, कैसे डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि सरकार कर रही है। हिमाचल प्रदेश कनेक्टिंग 27,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो नंबर तो कम है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा। टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जिसकी हमने अभी बात करी, इसी कंटेक्स्ट में एशियन बैंक असिस्टेड एचपी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बैंक्स भी जो हैं वो असिस्ट कर रहे हैं, बट ये वो पार्ट है जिसपे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ईजिली फंड्स वगैरह मिल जाएं डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है, या लोन्स मिल जाएं, तो फिर जो है ये इंडस्ट्री अपने आप बूस्ट होने लग जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने वी डिस्कस अबाउट दी कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। आई होप डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको समझ आए हों। सो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।